Hello, good evening, everyone. Welcome to the virtual session of Kalam Chandigarh. As you all are aware that the world is undergoing an unfathomable and life-threatening hazard. Lives have been turned upside down, and the new normal calls for new changes and investments. But undaunted, we have taken up the challenge and taken small steps towards blending in with the changes. Prabha Khaitan Foundation salutes everyone's spirit of rising to the challenge, and to keep the morale of patrons and members soaring high, PKF has reformatted its sessions to go virtual so that no one misses out on their regular dose of literature. Nearly 30 cities in India and abroad are connected in Foundation's umbrella and is dedicated towards initiating programs and campaigns for the upliftment and well-being of women. Kalam is one such initiative that goes to promote Hindi language and writers through an informal interaction. We are indeed very pleased to have with us the man of action, Mr. Neeraj Kumar. His action-packed career spans over 37 years and 9 years dedicated to CBI. A 1976 IPS batch officer, he has held many a coveted designation in the Delhi Police. In several key assignments, he is the man behind the much talked about Nirbhaya rape case. And it doesn't stop here. Mr. Kumar led the CBI investigations into the serial bomb blasts of 1993 in Mumbai, and his team arrested over 20 absconders. He is credited with the arrest and deportation of American center attacker Aftab Ansari from Dubai, and the nabbing of Gujarat's underworld don Abdul Latif in Delhi. The list is long and the tales even more exciting. So without much ado, we take you forward to hear it from the man himself as he regales us with his thrilling words. To do the conversation with him, we have another very talented and multifaceted personality, Mr. Vivek Attri. Vivek Attri, an ex-IAS officer, is a motivational speaker, author, mentor, advisor, columnist, and visiting professor. So for now, let's relax, sit back, and enjoy the session. Over to you, Vivek ji. Thank you very much, Shadu, and pleasure. It's a pleasure to be here for Kalam once again and speaking to Mr. Neeraj Kumar. Neeraj Kumar ji, sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि कलम के इस वेबिनार में मुझे हिस्सा लेने का मौका डॉक्टर प्रभा खैतान फाउंडेशन ने दिया है और इसलिए भी मैं बहुत आभारी हूं उनका, क्योंकि मैं आपसे विवेक जी बात कर रहा हूं. आप अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और साथ में कलम के जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी मुखातिब हूं. ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं. ऐसे ही आपका बड़प्पन है. मैं आपका करियर देख रहा था और किताबें तो अब आपने लिखी हैं, लेकिन जो करियर आपका रहा है, अगर गवर्नमेंट ने आपको जरूर अप्रिसिएशन लेटर्स दिए होंगे, लेकिन मैं आपको एक अप्रिसिएशन शुरू में ही दे दूं कि आपका करियर बहुत आउटस्टैंडिंग है सर. और जितने केसेस और जितनी वैरायटी का काम आपने किया है, ये बहुत नामुमकिन है नॉर्मली. तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले. बहुत बहुत शुक्रिया. आपको पता है, आप सरकार में रहे हैं, सरकार से ऐसी शाबाशी बहुत कम मिलती है ऐसी सराहनाएं बहुत कम मिलती है, लेकिन काम करने में अगर खुद आनंद आता रहे तो आदमी कुछ किसी सराहना के लिए इंतजार नहीं करता. सर, आप अपने अर्ली इयर्स के बारे में थोड़ा बताइए. किताबों पे हम बाद में आते हैं कि कैसे आप की पढ़ाई हुई और कैसे आप आईपीएस में आए और क्या उस वक्त आपकी पर्सनालिटी थी जब आप यंग मैन थे और आ रहे थे सर्विस में. ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछ दिया, क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा. आपको सुन के आश्चर्य होगा, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बनूंगा या मुझे क्या बनना चाहिए या मेरे क्या स्पेशल टैलेंट्स हैं. तो एक कह लीजिए खुमार था जवानी का
कॉलेज में थे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज का मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ मैं रेजिडेंस में था, अच्छे दोस्त थे, तो मौज मस्ती हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मौज मस्ती कभी खत्म होने वाली नहीं है। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंचा तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक दिन पूछा कि भाई 2-3 महीने में ये सब खेल खत्म होने वाला है, उसके बाद क्या करने का इरादा है? तो मैं वही स्तब्ध खड़ा हो गया। मैं वही, क्योंकि मुझे ये प्रश्न कभी मेरे दिमाग में आया नहीं था कि आगे मुझे क्या करना है। तो फिर उसने कहा कि हम लोग यूपीएससी जा रहे हैं फॉर्म लाने के लिए, आप 10 रुपये मुझे दे दीजिए तो आपके लिए भी एक फॉर्म ले आऊंगा। तो मेरे लिए वो फॉर्म ले आए और मैंने भर दिया और ईश्वर की कृपा रही कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं पुलिस में कैसे एडजस्ट होऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए खासकर पुलिसी नौकरी ठीक थी और मैं इसके लिए ईश्वर का बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनाया उन्होंने और मुझे लोगों की सेवा करने का इस तरह से मौका मिला। बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के। और सबसे बड़ी बात ये कि आप के जो फ्रेंड थे जिन्होंने 10 रुपए आपसे लेके फॉर्म भरवा दिया, उनका हम काफी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि नहीं तो आप पुलिस में ना आते, पता नहीं आप कहीं और होते। तो उनका नाम याद है सर, क्या नाम था उनका? वो तमिलनाडु कार्डर के आईएएस ऑफिसर हैं, मिस्टर अच्छा आर बालाकृष्णन। वो अच्छा। कुछ भी अच्छा लिखते हैं। जी मैं उनके लिखे हुए लेख आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पर। जी जी बिल्कुल सर। तो सर अब दिल्ली पुलिस पे आ जाते हैं, क्योंकि अब टाइम हमारे पास उतना नहीं है कि हम ज्यादा भूमिका बांधे। लेकिन आपकी किताब भी है खाकी फाइल्स और डायल डी फॉर डॉन। लेकिन सर जो दिल्ली पुलिस उस वक्त थी शुरू में और ओवर द इयर्स जो आपने देखी, पहले उसकी बात करें कि कैसा आपका करियर रहा और कैसे पहले, मुझे भी पता है कि बहुत ही बेसिक सी फैसिलिटीज होती थी पुलिस के पास भी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी। आजकल तो बड़ा कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए हो जाता है। तो इनिशियल ईयर्स कैसे रहे और करियर कैसा रहा सर आपका दिल्ली पुलिस में ओवरऑल? करियर मैं कहूँगा फिर मेरा सौभाग्य है कि करियर मेरा काफी स्मूथ रहा और एक के बाद एक अच्छे पोस्ट मिले और अच्छा काम करने का मौका मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे अच्छे केसेस मिले और क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी इन्वेस्टिगेशन वर्क में रही। मुझे लॉ एंड ऑर्डर में, वीआईपी ड्यूटीज में, ट्रैफिक में और अन्य पुलिस के कामों में उतनी दिलचस्पी नहीं रही जितना इन्वेस्टिगेशन का काम में मुझे मजा आया। तो अच्छे अच्छे केसेस मिले और उनको सॉल्व करने का मौका मिला। तो दिल्ली पुलिस की जो ग्रोथ है, जो इवोल्यूशन है, वो जाहिर है कि 1976 से लेकर आज तक काफी फर्क आ गया है। लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि पुलिस का काम वही है, लोगों की बात सुनना, पेशेंटली सुनना और उस पर तुरंत अगर कोई कार्रवाई करनी हो, कानूनी कार्रवाई, तो कानूनी कार्रवाई शुरू करना और उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना। ये काफी नहीं होता कि आपने जो उसका मुजरिम है उसको पकड़ लिया, अगर उसके साथ साथ आप उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे और उसको ठीक से प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, तो आपका केस फेल कर जाएगा। तो मुझे ये कहने में बहुत फक्र होता है कि मैंने हमेशा कोशिश ये की कि इन्वेस्टिगेशन के हर मुकाम पर मुझसे जो बन सका मैंने कंट्रीब्यूशन किया। और कई केसेस के, इम्पोर्टेंट केसेस के चार्जशीट्स तो मैंने खुद बनाए। और ये बात मेरे मातहत जो हैं, मेरे नीचे जिन लोगों ने काम किया उनको पता है कि फला फला केसेस में साहब ने खुद ही चार्जशीट लिखा। मसलन
निर्भया केस की चार्जशीट, या आप हैंसी क्रॉनिये केस चार्जशीट इत्यादि इत्यादि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं गिना सकता हूँ जिसकी चार्जशीट मैंने खुद बनाया और कोशिश की कि तमाम सबूत जो है वो ठीक से मार्शल हो सके प्रोसिक्यूशन के माध्यम से। सर ये तो वही बात होगी कि सबसे इम्पोर्टेंट केसेस आप ही के पास किसी तरह बाय चांस या कहिए कि कैपेबिलिटी की वजह से आए, और जब वो आए तो आपने बड़ी काबिलियत से हैंडल किए। तो थोड़ा सा निर्भया केस के बारे में सर कि कैसे वो इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्योंकि पूरी कंट्री में वो केस ने हिला दिया सर। और उसके बाद मैं आऊंगा दो केसेस जो आपने खाकी फाइल्स में बड़े इंटरेस्टिंग मुझे लगे। एक तो लॉटरीज वाला थोड़ा सा जिक्र करिएगा, और फिर इंडिया गेट को कैसे आपने बचाया और लोगों को कैसे जाने बचाएं। तो सर पहले निर्भया पे, हालांकि हमारे पास वक्त कम है, थोड़ा थोड़ा सभी केसेस के बारे में सर, निर्भया वाला। निश्चित तौर पर निर्भया केस जो है मेरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण केस है। ये केस इसका इन्वेस्टिगेशन काफी कठिन था, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा कठिन मैंने और केसेस किए हैं। लेकिन इस केस की जो स्पेशल चीज थी वो ये थी कि जो इसका रिएक्शन हुआ पब्लिक के में, मीडिया में और सारी दुनिया में, बल्कि मैं ये कहता हूँ जो मेरी किताब में भी लिखा है कि इट वाज अ वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन आवर कंट्री। इस केस के बाद कानून बदला और जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है उसमें कई सारी तब्दीलियां लाई गई। मसलन स्टॉकिंग, किसी अगर लड़की का कोई पीछा कर रहा है बार बार उसको तंग करने के लिए, ये कोई ऑफेंस पहले नहीं होता था, ये एक ऑफेंस बन गया। वॉयरिज्म, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई वॉयरिस्टिक तरीके से उसको देख रहा है या उसको गलत तरीके से छू रहा है इत्यादि इत्यादि, ऐसी तमाम चीजें जो है ये क्रिमिनलाइज नहीं थी, अब वो क्रिमिनलाइज हो गई है। इस केस में जो सबसे अहम बात मेरे हिसाब से थी वो ये थी कि हम लोगों पर सब पर बहुत जबरदस्त एक कह लीजिए हमला हुआ, मीडिया की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से, पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से। आपको वो मंजर याद होंगे जब इंडिया गेट पर इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रहे थे, अंत में हम लोगों को उनको डिस्पर्स करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा इत्यादि इत्यादि। तो वो जो सारा प्रेशर था वो मैंने अपने आप पर ले लिया और मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन टीम को शील्ड करके रखा ताकि वो अपना काम कर सके, केस को वर्कआउट करें और सारे अक्यूज को देश के विभिन्न हिस्सों से पकड़कर वो ले आए। और महज 5 दिन में ये काम पूरा हुआ। 10 दिन में हम लोगों ने चार्जशीट फाइल कर दी और शुरू का जो ट्रायल था वो भी काफी फास्ट रहा। बाकी अपील के समय काफी देर हुई और काफी 7 साल के बाद जो उसके मुजरिम थे उनको फांसी मिली। तो निर्भया केस की खासियत मेरे हिसाब से वो जो एक प्रहार था हम लोगों पर, वो उसको किस तरह से झेलना है, ये वो अनुभव, उस अनुभव की कहानी है मेरे नजरिए से। आपने दूसरा सवाल पूछा लॉटरीज के बारे में। मैं निर्भया वाले में सर इतना ही बस कहूंगा बीच में कि क्योंकि विमेन वाली बात थी और जो विमेन सिक्योरिटी की बात है, तो बड़ा लैंडमार्क वो आपने केस हैंडल किया। और क्योंकि प्रहार आप पे था मीडिया की तरफ से, लेकिन फिर भी कामयाबी मिली उसको सॉल्व करने में और उनको सजा होने में, बहुत बड़ी बात है वो। तो सर लॉटरीज पे थोड़ा सा, और फिर वो जो इंडिया गेट में आपने लाइव्स बचाई और वो कैसे बाय चांस भी कुछ लक भी हुई, कुछ कोडिंग की कोडिंग हुई, उस पर थोड़ा लाइट थ्रो कर दीजिए। हाँ, लक का जो फैक्टर है ना वो हर केस, हर इन्वेस्टिगेशन में होता है। लेकिन जैसे एक कहावत है स्पोर्ट्स के बारे, स्पोर्ट्स से मुतालिक, द मोर यू प्रैक्टिस द लकियर यू गेट। सो
in criminal investigation, you have to create a situation. You have to reach a point, a critical point, with your hard work, where luck favors you, where there is a lucky break. तो अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, अगर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो अचानक कोई आसमान से आपके सामने वो नहीं आ जाएगा. मतलब you have to be eligible for a lucky break, basically, Yes. through your hard work. Yes, you have to keep trying, and then if you keep trying hard enough, more often than not, luck comes in your favor. Like they say, fortune favors the brave. That's right. So I also say that fortune favors the hardworking or industrious investigator, if I have to talk about my own work. ये जो लॉटरीज का आपने जिक्र किया, ये बहुत दिलचस्प है, और कई सारे लोग जो आज कलम के इस मंच पर मुझे सुन रहे हैं, उनको शायद इस बात का अंदाज नहीं होगा कि 1980 के शुरू में पूरे देश में लॉटरी का बाजार बहुत ही गर्म होता था. हर स्टेट की लॉटरीज होती थी, एक स्टेट की 10-20 लॉटरीज होती थी, उनका डेली ड्रॉज होता था, और एक आम आदमी के दिमाग में ये था कि अगर ये सिक्किम स्टेट की लॉटरी है या ये दिल्ली स्टेट की लॉटरी है, तो जरूर ये एक जेन्युइन लॉटरी है. तो वो एक टिकट खरीदता था इस उम्मीद पर कि मुझे शायद प्राइज मिल जाए. और हम लोग के सामने बात तब आई जब किसी के पास एक प्राइज विनिंग टिकट था, और वो प्राइज विनिंग टिकट लेकर ऑर्गेनाइजर्स के पास गया, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने उसे कहा कि नहीं, ये टिकट आपका जेन्युइन नहीं है, फेक है. फिर वो हमारे पास आया, और फिर जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो इसकी परतें खुलती गई एक के बाद एक, और पता चला कि जो पूरा ये लॉटरी ट्रेड है वो 100% फ्रॉडुलेंट है. इसमें कहीं भी किसी भी टिकट बायर का या जो टिकट खरीदता है, उसका जीतने का चांस जो है वो 0 है. और उसकी क्या क्या मैल प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरह से करते हैं, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्ययन था. और वो अध्ययन हम लोगों ने किया, और वो अध्ययन करने के बाद उसको हम लोगों ने एक बुकलेट फॉर्म में तैयार किया, और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि हमें वो बुकलेट सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ा, और उसके बेसिस पर लॉटरीज पूरे देश में बैन हो गई. तो इस बात का मुझे बहुत संतोष है कि हम लोग के काम से आगे आने वाले पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग इस फ्रॉड से बच गए. और ये जो शैतान लोग जो लॉटरी चलाते थे और हजारों करोड़ों रुपए कमाते थे, उनकी दुकान बंद हो गई. फिर आपने जिक्र किया इंडिया गेट पर जो एक अटैक होने वाला था, तो मैं दर्शकों को या जो सुन रहे लोग उनको बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट हाउस पर अटैक 2001 के दिसंबर के महीने में हुआ था, और अगले साल फरवरी में एक हम लोगों ने ईमेल इंटरसेप्ट किया, जिसके पढ़ने से कुछ हम लोगों को लगा कि एक और अटैक दिल्ली में होने वाला है. लेकिन वो ईमेल्स जो है वो कोड्स में आती थी. ऐसा लगता था कि कोई लव लेटर आ रहा है, और लव लेटर के बीच में कुछ ऐसे कोडेड मैसेजेस होते थे. तो वो कोडेड मैसेजेस हम उसको डिकोडिफाई नहीं कर सकते शुरू में, और ये सिलसिला चलता रहा. और एक वक्त ऐसा आया कि ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक दिल्ली में टेररिस्ट अटैक होने वाला है, और लोग दिल्ली में इकट्ठा हो गए हैं. लेकिन कब होगा और कहाँ होगा वो सब कोडेड मैसेजेस में था. और मैंने एक प्राइवेट इंडिविजुअल, एक पब्लिक के इंडिविजुअल का रोल उसमें उजागर किया है, क्योंकि मुझे
क्रेडिट शेयर करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो यहाँ एक आम आदमी ने हम लोगों की मदद की। एक स्टूडेंट था, वो नौकरी ढूंढते हुए दिल्ली आया था और वो मेरे ऑफिसर के ऑफिस में अपने स्कूल सीनियर से मिलने आया और उसने देखा कि वो बड़े परेशान है। पता चला कि एक कोड से वो जूझ रहे हैं। तो उस लड़के ने उस कोड को 3 या 4 घंटे के अंदर उसको डिकोड कर दिया। जो काम शहर के या देश के बड़े बड़े क्रिप्टोलॉजिस्ट, बड़े बड़े कंप्यूटर एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए, वो इस लड़के ने 3-4 घंटे में सॉल्व किया। और तब हमें पता चला कि 25 फरवरी 2002 को इंडिया गेट पर एक बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला है। और तो फिर ये बात गवर्नमेंट से उन्होंने शेयर किया और वहाँ इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम किए गए और वो अटैक बच गया। मैं सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि अगर ये अटैक हम लोग नहीं रोक पाते तो निश्चित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस अटैक होने के बाद हमारी सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, आईबॉल टू आईबॉल थी। और अगर ये अटैक हुआ होता तो निश्चित तौर पर युद्ध हुआ होता। तो फिर न जाने युद्ध में कितने लोग, दोनों तरफ से कितने लोग की जाने जाती, किस तरह से नुकसान होता। तो जितना संक्षेप में हो सका मैंने ये कहानियां आपको बताई। नहीं, बिल्कुल सर, और किताब में भी आपने बड़ी बखूबी इनका बयान किया है इनको। और खाकी फाइल्स और डायल डी फॉर डॉन में एक जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, आपकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी क्लियर है, फिर भी बहुत अच्छी है। और आपने केसेस बड़े सिंपल वे में सबको बता दिए, जो लेमैन भी है वो समझ सकता है। और फिर भी आपने ऐसे कोई डिटेल छोड़े नहीं जो इम्पोर्टेंट थे। जहां जहां कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है, मैंने देखा कोई कोड है या कोई चीज है उसमें कहीं एक्स एक्स लगा दिया, कुछ कर दिया, बट अदरवाइज यू हैव गिवन ऑल द डिटेल्स। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर अभी एक और केस पे आते हैं, जो आपने सीबीआई में होते हुए किडनैपिंग का केस भी एक हैंडल किया, और वो बड़ा डेंजरस मामला था। तो उसमें जरा थोड़ा सा बताएं कि कैसे सीबीआई का स्टिंट आपका कैसा रहा, और ये केस कैसे आपके पास आ गया। सीबीआई में मैं 9 साल रहा। 6 साल मैंने मुंबई बम धमाके जो 1993 में हुए थे उसके साथ मैं जुड़ा रहा, उसके इन्वेस्टिगेशन के साथ। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कई सारे मामले हैंडल करने का मौका मिला। लेकिन 6 साल के बाद मेरा तबादला उस टीम से किसी एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में मैं आ गया। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में मैं जब आया तब मुझे एक केस मिला किडनैपिंग का। तो जब ये केस मेरे पास मुझको दिया गया करने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का जॉइंट डायरेक्टर हूँ, मेरा इस केस से क्या लेना देना। मेरे पास न रिसोर्सेज है, न ऐसी एक्सपर्टीज है हमारे लोगों के पास। लेकिन फिर भी एक चैलेंज के तौर पर हम लोगों ने वो केस लिया। एक एनआरआई था जो अबू धाबी से आया था, थेकट सिद्दीक उसका नाम था। वो किडनैपर्स के चंगुल में कब्जे में था, उसको रखा गया था दिल्ली के एक पॉश इलाके में बंधक बनाकर, और उससे $3 मिलियन का रैंसम मांगा गया था। और लोगों ने कहा था कि हम अगर ये पैसा नहीं मिला तो हम इसको जरूर मार देंगे। और एक डेडलाइन दी गई थी, और वो डेडलाइन जो है वो करीब करीब अब खत्म होने वाली थी। और बीच में हम लोग काफी हाथ पैर मारते रहे, लेकिन हमें कुछ सुराग नहीं मिला कि वो कहाँ उसको रखा हुआ है। तब लेकिन हम कोशिश करते रहे, और फिर वो जैसे लकी ब्रेक की बात आती है, वो लकी ब्रेक हुआ और हम उसमें कामयाब हो गए उस जगह को लोकेट करने में। वो सर्वप्रिय विहार में एक फ्लैट में उसको रखा हुआ था। और देश के बहुत ही मशहूर क्रिमिनल्स के कब्जे में वो था।
तो एनी हाउ उस समय हम लोग को पता नहीं था, हम लोग रेड किया, फिर रेड से उसको रेस्क्यू जिंदा निकाल लिया और वहां पर मुठभेड़ हुई बकायदा और 2 क्रिमिनल्स मारे गए और लेकिन हम लोगों ने जो बंधक था उसको जिंदा बचा लिया। तो ये बचाने से ये हुआ कि एक एनआरआईज के दिमाग में ये बात आ गई थी कि हिंदुस्तान में बिजनेस करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरह से किडनैप किया जा सकता है। तो कम से कम उससे राहत मिली, ये मैसेज गया कि नहीं ऐसा नहीं है, देश की पुलिस जो है वो एनआरआईज को सुरक्षित रख सकती है। और इसके अलावा ये भी हम लोगों ने साबित कर दिया कि लाइव किडनैपिंग केसेस को भी सीबीआई हैंडल कर सकती है। बहुत ही जबरदस्त बात है सर। ये एक्चुअली एक मैं जब यंग ऑफिसर था तो मुझे किसी सीनियर ने कहा कि जो गुग्गी मार होते हैं यानी कि सिर्फ दस्तखत करते हैं वो ठीक रहते हैं, तो लेकिन जो लोग आउट ऑफ द वे जाते हैं कुछ काम करते हैं फिर अकम्प्लिश तो वही कुछ करेंगे और फिर कई बार मुठभेड़ भी उन्हीं की होती है या झगड़े भी उन्हीं के होते हैं। तो ये तो 2 टाइप के करियर होते हैं। जैसा आपका करियर है इसमें तो मतलब यू वेंट बेसिकली आउट ऑफ द वे टू सर्व द नेशन इन व्हाटएवर कैपेसिटी यू कुड, और बहुत जबरदस्त बात है ये। लेकिन सर एक और केस बड़ा, बिकॉज केसेस की बात हो रही है, सीबीआई में रहते हुए सरदार बेअंत सिंह का जो मर्डर हुआ बम ब्लास्ट में, और फिर जगतार सिंह हवारा का अरेस्ट हुआ। मैं क्योंकि चंडीगढ़ का हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था उस केस का। और बेअंत सिंह का जहाँ मर्डर हुआ, हम तो बाद में भी मैं पूरा करियर उसी सेक्रेटेरिएट में ही जाता रहा। मैं हैरान था कि यहाँ कैसे कोई बम ब्लास्ट हो सकता है। तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ये भी देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है। मैं ये जो केस था वो सीबीआई के पास उस समय था, लेकिन एक और टीम के पास था। लेकिन शुरू में एक जो टिप ऑफ था इस जगतार सिंह तारा के बारे में, जो मुख्य आरोपी था इस केस का, उसके बारे में वो टिप ऑफ इत्तेफाकन मेरे पास आया और मैं अपने जो मेरे बॉस थे मैं उनके पास गया कि ये टिप ऑफ है, अगर आप कहें तो ये टिप ऑफ मैं उस टीम को पास ऑन कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम ही करोगे, तुम करो। तो मैंने कहा सर ये टेररिस्ट का मामला है, वो भी खालिस्तानी टेररिस्ट है, और इत्तला तो ये है कि उसके पास एके भी है, उसके पास साइनाइड पिल भी है, और वो गोली भी चला सकता है, तो मुझे कुछ बैकअप दिया जाए, आर्म्ड बैकअप। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे पता है तुम कर लोगे अपना काम, तो तुम आगे बढ़ो और करो, और अगर बिल्कुल ही जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दूंगा। तो एनी हाउ उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने फॉलो किया, और उसका जिक्र उस चैप्टर में है, उस कहानी में है जो डायल डी और डॉन में है, और हम लोग उस तक पहुंचने में, जगतार सिंह तारा तक पहुंचने में सफल हुए। और आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, चूंकि आपने उस केस का जिक्र किया है, मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग निहत्थे एक कमरे में घुसे जहां जगतार सिंह तारा, जो 6 फुट 3 इंच का एक यंग 20-22 साल का सिख जवान था, जिसने कि अमृत छका हुआ था, और उसका एक और दोस्त, वो दोनों अगर मिल के अगर चाहते तो हम 3 लोगों को तो बिल्कुल खत्म कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उनको पकड़ा तो उन्होंने सरेंडर किया, और लो एंड बिहोल्ड उसकी पगड़ी से एक साइनाइड पिल मिला। लेकिन हम लोग की खुशकिस्मती थी कि उस समय उसके पास उसका एके नहीं था, AK-47 नहीं था। अगर AK-47 होता तो जरूर हम लोग we would have been part of history right then. लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वो हम लोग से लड़ता भी तो हम लोग को बड़ी आसानी से पछाड़ सकता था, लेकिन उसने कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं किया, और हम लोग उसको पकड़ के ले गए, और उसके बाद उसको जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसको हैंड ओवर कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे दिलचस्प किस्से मेरी जिंदगी में होते रहे, और ये सब मैं सोचता हूँ कि मेरी तकदीर है, ऊपर
वाले की मेहरबानी है कि ऐसे ऐसे केसेस जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं था वो भी मेरे पास आते रहे और मैं उनको बखूबी उनके साथ जो मेरे से हो सका मैंने किया और ऊपर वाली कृपा से सफल रहा। आप क्रिकेट में भी पहुंच गए और हांसी क्रॉनिये का आपने जिक्र किया। मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ, क्रिकेट राइटर भी हूँ, तो मैंने थोड़ा उस टाइम भी पढ़ा था कि दिल्ली पुलिस उस वक्त क्या कोई और इंटरसेप्ट कर रही थी और हांसी क्रॉनिये के बारे में एकदम से कोई बात आ गई, उनकी इंटरसेप्शंस में कोई बुकीज की बात हो रही थी। तो ये जो भी था, हाउएवर यू फाउंड आउट, लेकिन उसका थोड़ा सा बताइए कि पता कैसे चला पहली बार ये मैच फिक्सिंग का आया। और क्योंकि इंडिया लव्स क्रिकेट सो मच, तो अगर ऐसी चीज में अगर कहीं कोई जैसे दाल में कुछ काला हो तो मजा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आपने जो एक्सपोज किया वो बहुत जरूरी था, तो उसके बारे में भी बताइए। हैंसी क्रॉनिये का केस जब हुआ तो दिल्ली पुलिस ने किया था और उस समय मैं सीबीआई में था। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो वो ऑफिसर था इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, वो एक एक्सटॉर्शन का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कुछ टेलीफोन्स कॉन्वर्सेशंस को सुन रहा था उस एक्सटॉर्शन केस के सिलसिले में। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उन कॉन्वर्सेशन में कुछ हैंसी क्रॉनिये का नाम आया, कुछ क्रिकेट की बात हुई। अब ये जो हमारे इंस्पेक्टर साहब थे उनको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्रॉनिये वैसे नाम भी ऐसा है ना सर, वो हांसी क्रॉनिये उनको बिल्कुल नहीं समझ आया वो। अगर सुनील गावस्कर या कोई और, गावस्कर ने ऐसा काम किया नहीं, पर ऐसा सिंपल नाम भी नहीं था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फिर उन्होंने और कॉलीग्स के साथ उन्होंने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया भाई हैंसी क्रॉनिये साउथ अफ्रीकन टीम का कैप्टन है, हमारे देश में उसकी टीम टूर कर रही है, ये तो बहुत बड़ा मामला है, इसको देखो और गंभीरता से और गहराई से देखो। तो फिर उन्होंने उस पर और जोर शोर से काम किया तो एक पूरा रिंग सामने आया और केस दर्ज हुआ, उन पर रेड्स हुए, जो बुकीज थे उनको पकड़ा गया, 2 लोग भाग गए, उनमें से एक जो मुख्य आरोपी था संजीव चावला, वो अभी हाल में मेरे ख्याल है 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं तो उसको यूके से एक्स्ट्राडाइट कराकर दिल्ली पुलिस लेकर आई है। तो उस केस के चार्जशीट में और संजीव चावला के एक्स्ट्रेडिशन में मुझे एक भूमिका अदा करने का मौका मिला और केस के 13 साल के बाद वो केस मैंने चार्जशीट किया। और प्रोग्राम शुरू होने के पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मैं बता रहा था कि चार्जशीट उस केस का मैंने खुद ही लिखा था। तो इस तरह से फिर वो सन 2000 में इंडियन क्रिकेट में जो फिक्सिंग वगैरह होता है उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी हुई, उसमें भी जो मुख्य किरदार जो निभाता था एमके गुप्ता, उसको पकड़ने का मुझे मौका मिला, उससे सारी बातें आगे सामने आई। और फिर 2013 का तो जो शीशांतर केस है वो तो उस समय हुआ जब मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली था। तो लगभग सारे बड़े बड़े केसेस जो क्रिकेट के मुतालिक हुए हैं, क्रिकेट में जो भ्रष्टाचार है उसके मुतालिक जो हुए हैं उसमें छोटा मोटा रोल अदा करने का मुझे मौका मिला। तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया है कि क्रिकेट में करप्शन किस तरह से होता है और क्या क्या करना चाहिए कि वो रोका जा सके। नहीं, फिर आप उसके बाद क्रिकेट में बीसीसीआई में विजिलेंस कमिश्नर या ऐसा कोई पद पे भी रहे, तो वो भी एक्सपीरियंस बताइए कि हाउ वाज इट। और अब क्या काफी ज्यादा अब टाइटन हो गए स्क्रूज? इज इट नाउ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू do any illegal act, or is it still possible? No, it has become that much more difficult, and at the top level it is rather difficult for people to indulge in corruption. लेकिन बीसीसीआई के टेन्योर में मैं उनका एंटी करप्शन यूनिट का हेड था
मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो इसका बीजारोपण होता है भ्रष्टाचार का यंग क्रिकेटर्स, बडिंग क्रिकेटर्स की जिंदगी में, वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पर होता है, जबकि वो क्लब लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर खेल रहे होते हैं। उस समय ही कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनका संपर्क कुछ करप्टर्स के साथ हो जाता है, जो बाद में उन संबंधों का फायदा उठाते हैं। तो एक ओवरव्यू मुझे देखने का मौका मिला मुझे बीसीसीआई के करियर में, और एक अच्छी सी जानकारी है मुझे कि क्या होता है और क्या करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। के बाद सर, ये जो किताब लिखने वाली बात है, फर्स्ट ऑफ कोर्स आपका दिल्ली पुलिस से मेरे ख्याल रिटायरमेंट हुआ 2013 में, और 38 इयर्स के डिस्टिंग्विश करियर के बाद, तो पहले तो वो कैसा लगा उस वक्त रिटायरमेंट की टाइम, और दूसरा फिर किताब लिखने का कब सोचा और कब शुरू? ये भी एक महज इत्तेफाक है, एक्सीडेंट है, जिसका जिक्र मैंने अपने प्रीफेस में किया है डायल डी फॉर डॉन में, कि मैं किसी तरह से इसमें यूं कही कि फंस गया। लेकिन ये बात जरूर है कि मुझे लिखने का शौक हमेशा से रहा है, और जबकि आपके पास पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस से एक ऑफर आता है आपके बिना कुछ किए हुए कि आप अपने संस्मरण लिखिए, तो आदमी वैसे ऑफर को ठुकरा नहीं सकता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां बनी कि पेंगुइन रैंडम हाउस ने मुझे एक ऑफर भेजा कि आप किताब लिखिए, और उसके बाद मैंने इन डायल डी फॉर डॉन लिखा, और उसके बाद फिर खाकी फाइल्स। तो मैंने बजाय अपने संस्मरण लिखने के, मैंने सोचा कि क्यों ना उन केसेस के बारे में बात करूं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे और जो लोगों को भी दिलचस्प लगेंगे पढ़ने के लिए। तो ऐसे कुछ हालात बने जिसके तहत ये किताबें लिख दी गई। क्योंकि सर मैं भी ऑथर हूँ और आप भी हैं, ये एक टैलेंट जो होता है ये बहुत कम लोगों में होता है किताब लिखने का, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। आई मीन पुलिसिंग करना, केसेस इन्वेस्टिगेट करना और चार्जशीट लिखना एक चीज होती है, किताब लिखने में और ही कोई हुनर और स्किल चाहिए होता है। तो लकीली वो आप में दोनों थे और हैं, क्योंकि एक चीज होती है इन्वेस्टिगेट करना और दूसरा होता है उसके बारे में बयां करना। तो दोनों आपके अंदर है, इसलिए हम ये गुफ्तगू इतनी दिलचस्प कर पा रहे हैं और इतने लोगों को पता भी चल रहा है। अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ अच्छा काम सरकार में किया, वो बता नहीं पाए या बाद में लिख नहीं पाए। आपने बल्कि अपने जूनियर्स और कॉलीग्स जिन्होंने आपको हेल्प किया, उनका जिक्र भी इसमें किया है। तो ये एक्सपीरियंस जो किताब का रहा वो आपके लिए काफी रिवॉर्डिंग रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा ये लिखकर। मैंने अपने प्रीफेस में भी लिखा है कि मैंने ये किताबें सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं लिखी है, ये कहने के लिए नहीं लिखी है कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। ये मैंने उन कॉलीग्स के लिए लिखी है, उनका रोल उजागर करने के लिए लिखी है, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, लोग जानते भी नहीं कि ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं, पार्लियामेंट हाउस अटैक ऐसे केस को सॉल्व करते हैं, या इंडिया गेट पर टेररिस्ट अटैक होने जा रहा है उसको प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से युद्ध नहीं होता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या कैसे क्रिकेट मैच फिक्सिंग के केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं, और कैसे जब जब हमारे अफसर, हमारे मातहत जब मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत से ऐसी परिस्थिति बनती है कि बड़े बड़े केसेस सुलझ जाते हैं। तो ये
उनका रोल उजागर करना। और जो दूसरी किताब में एक पब्लिक का जो रोल है वो भी मैंने बताया। फर्स्ट किताब में जो ये आपने किडनैपिंग का केस का जिक्र किया था, उसमें एक धोबी ने बड़े क्रिटिकल मोमेंट पर हमें ये बताया कि साहब आपको वहां नहीं रेड करना है, उसके बगल वाले फ्लैट में रेड कीजिए, वहां गड़बड़ चल रहा है। तो जो पब्लिक का रोल है वो भी हमें चाहिए कि हम सामने लाएं, क्योंकि कई दफा पब्लिक की मदद से ही केसेस सॉल्व होते हैं और उनकी मदद से ही हम जो आरोपी हैं उन तक पहुंच पाते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, एक तो कॉलीग्स के बारे में, पब्लिक के बारे में। और मैं हालांकि आईएएस में रहा, लेकिन मुझे भी ये धोबी बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी लगता है हर जगह, और उसको सब घरों के बारे में पता होता है। जी। तो कहीं कुछ पूछना, रास्ता भी पूछना होता था पहले या अभी भी, तो बड़ा काम का आदमी होता है। और मैं बिल्कुल आपसे सहमत, इम्पोर्टेंट रोल अदा किया होगा। लेकिन सर एक और केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है खाकी फाइल्स में, मून गेजिंग के बारे में। और जो ट्राइब्स खतरनाक किस्म की होती थी, उनको कैसे आपने खत्म किया? क्योंकि ये तो मतलब सदियों से चली आ रही चीज थी, बड़े डेंजरस लोग, और जो कि मर्डर भी कर देते थे और डकैती भी कर, चोरी भी कर लेते थे। तो कैसे उनको खत्म किया? और इसके अलावा एक और केस कोई और जो आप चाहें, कि हमारे पास कोई 7-8 मिनट और हैं इससे पहले कि हम क्वेश्चंस लें, तो ये मून गेजिंग वाला पहले बताएं। हाँ, मैंने उस कहानी का नाम मून गेजर रखा है। एक्चुअली मून गेजर वो जो क्रिमिनल ट्राइब के लोग थे जो जिन्होंने यहाँ पर काफी आफत मचा रखा था दिल्ली में, वो भी मून को देखकर ही ऑपरेट करते हैं, डार्क नाइट्स में ऑपरेट करते हैं। और चूंकि वो डार्क नाइट्स में ऑपरेट करते हैं इसलिए, और मेरे इलाके में वो ज्यादातर ऑपरेट कर रहे थे, तो मैं खुद एक मून गेजर बन गया था, क्योंकि मेरी निगाहें हमेशा शाम होते ही आसमान की तरफ होती थी कि आज मून किस शेप का है, ये मूनलेस नाइट है या फुल मून नाइट है। तो both the criminals as well as the writer of the story were moon gazers in a manner of speaking. तो ये अंग्रेजों के समय में कुछ हमारे देश के कुछ हिस्सों में ऐसे लोग थे जो आदतन जुर्म करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में उनको एक शेड्यूल में उनको लिस्ट आउट किया हुआ था, और उनको ये कहा हुआ था कि आप अपने इलाके से जब भी बाहर जाओगे तो थाने को बता के जाओगे, और जहां जाओगे वहां थाने में रिपोर्ट करोगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो आदत जो होती है कम्युनिटी की, वो बड़ी मुश्किल से जाती है। तो ये जो जिस ट्राइब का मैंने जिक्र किया है, जो हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मैं बतौर डीसीपी तैनात था, उन्होंने कई सारे केसेस एक के बाद एक किए, जिसमें कि निहत्थे लोगों को उनको सोते हुए हालत में उनको पहले मार दिया, उसके बाद पूरे घर को लूटा और सारा माल लेके वो भाग जाते थे। एक के बाद एक केस दूसरे केस से ज्यादा विभत्स और हार्ट रेंचिंग होता था। कहीं एक वृद्ध युवती को मारा गया, 82 साल की उम्र की वृद्धा को, जिसको बिना मारे हुए भी वो क्राइम किया जा सकता था। उसके तुरंत बाद एक 20-22 साल की लड़की को मार दिया गया, मारा उन लोगों ने, और एक के बाद एक वो ऐसे केस करते गए। और जब आप एक जिले के इंचार्ज होते हैं, डीसीपी होते हैं या एसएसपी होते हैं, और इस तरह के केसेस अगर आपके जिले में बार बार हो रहे हैं, तो आप तो सरकार में रहे, आपको पता होगा किस तरह का प्रेशर पुलिस पर पड़ता है, और खासकर जो पुलिस के वहाँ एसपी हैं या डीसीपी है उन पर पड़ता है।
तो मुझ पर जाहिर है बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक बिल्कुल दूसरा एक नया रास्ता अपनाया, और वो रास्ता था कि इन लोगों का एक सोशियोलॉजिकल स्टडी करना। और एक ऑफिसर मैंने गुना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में भेजा जहाँ से ये लोग आते हैं, और फिर वहाँ पर उस स्टडी के दौरान कुछ क्लूज मिले, और उस क्लूज के बेसिस पर हमें फिर ब्रेक थ्रू मिला, और फिर हम उन लोगों को हम गिरफ्तार कर पाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके बाद से दिल्ली में, ये 1991 की बात है, उसके बाद से दिल्ली में एक भी घटना नहीं घटी है जिसमें कि उस ट्राइब के लोगों ने यहाँ पर ऑपरेट किया हो। तो अगर दिल्ली के निवासी आज आराम से सोते हैं और उनका खौफ नहीं होता, जो कि एक समय में उस गैंग का था, तो उसकी वजह ये इन्वेस्टिगेशन और ये पूरा ऑपरेशन था। बिल्कुल। तो जी, ये यूनिक इसलिए था कि इसमें ब्रेक थ्रू एक सोशियोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से मिला। और इसके अलावा तो बहुत सारे केसेस हैं जिसका मैं जिक्र कर सकता हूँ, और मैं अगर आप कुछ पर्टिकुलर किसी केस के बारे में पूछना चाहें तो पूछें। नहीं सर, मैं बल्कि केसेस हमने काफी अच्छे डिस्कस कर लिए। मैं अब एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि यंग ऑफिसर्स पुलिस के आज के युग में 2020 में बड़ी ब्रेकनेक स्पीड है और स्ट्रेस भी है, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या उनको करना चाहिए अपना करियर सफल बनाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए और देश की सेवा भी करने के लिए? मान लीजिए अभी कोई 26 साल का आईपीएस ऑफिसर अभी उसने ज्वाइन किया है, क्या करना चाहिए, उसका क्या आउटलुक होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि अपने काम को बड़ी बारीकी से समझे। उसका हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि जो लोग आईपीएस ज्वाइन करके या आईएएस ज्वाइन करके आते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि हम तो साहब हैं। हाँ, पहले कोशिश ये होती है कि जो उनके पोजीशन से क्या क्या पर्क्स अक्रू करता है, क्या क्या पर्क्स मिलता है, उस पर ध्यान ज्यादा होता है, और वो अपने काम को गहराई से बारीकी से वो नहीं समझते हैं। और पुलिस का काम एक बहुत ही टेक्निकल काम है। ये उतना ही टेक्निकल है जितना कि आप समझ लीजिए डॉक्टरी का काम है या इंजीनियरिंग का काम है, जो हमारे लोगों को एहसास नहीं होता। वो सोचते हैं ये काम हमारे सब इंस्पेक्टर ये लोग करते रहेंगे, ये थाने में रिपोर्ट होगा, केस दर्ज होगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और आप साहब बन के बैठे रहिए। तो ज्यादातर लोग ये मेरा ख्याल है गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि बिना उस काम में अपना हाथ गंदा किए हुए वो एक अच्छे सक्सेसफुल ऑफिसर बन सकते हैं। शायद बन भी सकते हैं, लोग ऐसे कई हैं जो पूरी जिंदगी अपनी पूरा करियर ऐसे ही काट देते हैं और बड़े बड़े पोस्टों से रिटायर हो जाते हैं और उनको पुलिसिंग का पी भी पता नहीं होता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है। तो सबसे पहला काम तो है कि पुलिसी काम को गहराई से समझना, और अगर आप अपने काम को गहराई से समझेंगे तभी आप अच्छा लीडरशिप आप दे सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। और साथ ही साथ जो कहते हैं ना, इफ यू enjoy your work no longer remains a drudgery. It becomes a part of it is like enjoyment. You are enjoying your work. It is no longer trying on you. So if you begin to enjoy your work, जो जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो, अगर इन्वेस्टिगेशन में आपकी रुचि हो तो इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कीजिए। अगर आपकी रुचि ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो तो वो भी एक बहुत ही टेक्निकल काम है, उसमें उसको आप डेवलप कीजिए। अगर आपकी रुचि
मैन मैनेजमेंट में हो तो उसमें आप अपने आप को डेवलप कीजिए। हर तरह से पुलिस का जो काम है वो बड़ा ही मल्टी फैसेटेड है, right from logistics to man management to crowd psychology to criminal psychology to forensics to so many things, prosecution, and so much to learn and so much to contribute in every which way. And what IPS officers should never forget, that God has given them superior education and they are handpicked, and you have been chosen to be leaders of men, not for nothing. You have been chosen to be leaders of the police force because you are better educated, and it is expected of you that with your better education and better exposure that you have had, you will be able to give a quality leadership to your men in every which way. So this is what young IPS officers should understand, and this is what my message to them would be. Sir, it's been wonderful talking to you. I'm going to hand over to Shalu Goyal now for the Q&A. I believe she has many questions now, and I think you'll be able to cover them with crisp answers, I think. Yes. Shalu, आप mute में हैं. You have to unmute yourself. Thank you, Neeraj sir, and thank you, Vivek ji. This was most engaging and educative session. And Neeraj ji, I think you are a very big epitome of bravery and hard work. And आपकी तो मिसाल youngsters को आज मिलनी चाहिए. As per me and as per, I think all our audience would feel the same thing. Thank you. We have very little time now, but we have a few questions. We have quite a few questions. I'm not sure if I'll be able to take all, but there's one very interesting one. नाम किसी ने नहीं लिखा है, so I'll just ask you the question. What happened to the young student who decoded the letters in 3 hours, and you were able to save so many lives at India Gate because of him? I must say that he was not given any recognition or any help from the government side, but we on our own, the Delhi police and particularly the officers whose friend he was, we helped him in a big way, and today he is a well-established computer scientist and a software engineer, and he is doing very well for himself. Oh, that's wonderful to hear. There's another question about Sushant Singh Rajput case. The CBI took over the case of Sushant Singh Rajput after much deliberation. Since you were in CBI for a long time and you know how things work, do you think CBI will be able to get justice and will be honest till the end? What is your view for this case? See, when a case comes to the CBI, what happens is that a fresh look is given to the case. All that has happened, all the developments that have happened are looked at afresh. So if there has been any mistakes, or shall we say any acts of omission or commission on the part of the initial investigating agency, that are first pointed out and necessary corrective measures are taken. So the first and foremost thing that happens is a new, fresh, non-partisan, objective look at all the developments. Secondly, the CBI carries out the investigation in a scientific manner. For instance, in the Sushant Singh Rajput case, a number of questions have been raised, whether he could have hanged himself because his height was so much, the fan was at this height, the cloth that was used, whether it could have taken his weight, etc., etc., whether fingerprints were there or not there. Now, the entire scene can be reenacted by using dummies.
a dummy of the same height, of the same weight, and using the same cloth. And by reenacting, you can know that, well, whether it was possible or not possible. Then CBI has access to better forensic backup. It has the Central Forensic Science Lab with it. So CBI can have a fresh look at the forensic evidence that was collected. Also, the forensic accounting that is perhaps required for going into his finances and his bank accounts, that can be done afresh, in a better fashion. So, and all the questions, every question that has been raised about the case, whether it had any links with the suicide of Disha Salian, whether his girlfriends had played any role, whether his best friend who was virtually staying with him, whether they had any role to play. All the questions that have been bothering people, all those questions can be answered, and can be answered with certain amount of confidence and certainty. So I cannot say that CBI will at the end of it prove that it was not suicide, it was murder. If it was a suicide, it was a suicide. But however, if there was an abetment to suicide, if somebody had driven him to that point, if there were circumstances which had created him to, all those things can be answered categorically by the CBI investigation. Okay, great. Chalo, we'll be hoping for a speedy justice for this case, whatever it may be. There's one more question from Manisha Jain. She's also one of the SR's women. And she writes, after the Nirbhaya case, India has set a bad image to the world, and many other cases with foreign women visiting India and being raped. And do you think this is a cultural problem, that the men of India need to be educated? And women on safety when traveling alone? Would punishments like in UAE make India safer? I'll last question first. We cannot be like UAE, or we cannot be like those countries which follow a certain law, say the Sharia law, that immediately your hands will be cut, or your genitals will be cut off, or you will be beheaded, etc. That is not the law which we have given to ourselves. We have given a different kind of law, and that law is adequate. And whenever it has been found inadequate, it has been amended, as it has been amended after the Nirbhaya case. Having said that, it is an incorrect perception that rapes are very high in India. If you see the rapes of other countries, you will be horrified. The number of the kind of rapes that happen abroad and so on. But this was a very brutal kind of a rape, and I'm not at all surprised that it received the kind of reaction that it did, and rightly so. There are some sociological problems, as was pointed out by the person who asked this question, especially in this area, of West India, where the arrival of a female child in a household is considered to be a matter of not much celebration. Where a boy, when a boy is born, there is so much celebration. Absolutely. The area where female feticide is the highest in the whole country. This is the area where female infanticide is the highest. There are villages in this area. You are aware, in Haryana, Punjab, and so on and so forth, where there are not enough girls to whom men can be married.
there are certain villages where there is not a single woman. ऐसे भी गांव हैं. तो ऐसे माहौल में जो एक प्रवृत्ति जो एक पैदा होती है एक मेल के दिमाग में, वो होती है one of aggression, one of you have curiosity. Yeah, so it has become very brutal. So we have to change this, and I must say that in recent years that change is now happening, and the instances of feticide and infanticide have reduced, and the awareness amongst common people about female child is changing, because women have proved that they are no less than men in almost every field. Even when it comes to flying fighter aircraft, they are as good, if not better, than men. So now the arrival of a girl child is not a matter of great remorse and despair in a family. The girl child is often more as equally welcome as a male child is. But yet, we have a long way to go. And also, let us not forget that there's so many parts of our country where women are not treated the way women are treated in this part of the country. True. I've served in the Northeast. I know how it is the women who run the show. You go down south, in Kerala, for instance, it is a matriarchal society. Where female is the head of the family. So things are different in different parts of the society. But yes, in the northwest of our country, there is a problem, and I have stated why that problem is there. Okay. Chalo. Before we sign off, I'd just like to ask you one more question from Manisha. If you watched Patal Lok, जो latest एक series आई है, web series, I don't know अगर आपने देखी है, पर क्या वो true depiction है पुलिस officers की, हमारे departments की? Interestingly, very very interestingly, Khaki Files में एक chapter है, story of their assassins. शायद विवेक साहब ने पढ़ी होगी. तो ये उसी केस पर आधारित है जिस केस पर ये सीरीज वेब सीरीज बनी है. तो इस केस में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है. पुलिस को भी एक पॉजिटिव तरीके से ही दिखाया गया है, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उससे काफी हटकर है. लेकिन क्योंकि एक इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है और एक दिलचस्प तरीके से पुलिस का डिपिक्शन हुआ है, मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज देखें. और इसकी जो असली कहानी है वो खाकी फाइल्स में स्टोरी ऑफ देयर असैसिन्स. Okay. That is the real story, from where the facts have been distorted and distorted quite a bit to make this web series. Definitely, now we must read your book, and I'm sure our audience is also encouraged to read your book after hearing such interesting and adventurous stories from you. So I thank you on behalf of my audience. Thank you so much for coming on our show, and इंशाल्लाह आपसे मुलाकात फिर होगी. And I thank you. I thank Ehsaas. I thank Dr. Prabha Khaitan Foundation, and I thank all of you, particularly Vivek Atri ji and also Shalu ji. It has been great talking to you, and thank you for all the hospitality that you have shown to me. Thank you. Thank you, Vivek ji. I would also like to thank you and thank Mr. Neeraj Kumar especially. He was so warm and such a brilliant conversationalist. It was a wonderful experience. I'd like to thank the Prabha Khaitan Foundation and the hosts, Ehsaas.
Thank you so much. Thank you.